नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की। पीएम मोदी हेमंत शर्मा के नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्र में प्रगति पर। तिरुचेंदुर मंदिर में कुंभाभिषेक का बड़ी संख्या में पहुंचे वक्त। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा ने टाउन हॉल का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखा। आइए देखते खबरें विस्तार से। पीएम मोदी और हेमंत शर्मा के नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्र में प्रगति पर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमान मोमिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के गतिशील नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्र समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का काम तरफा चल रहा है। डॉक्टर मोमिन ने कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन को याद करते हुए कहा कि उस दौरान आदिवासी समुदाय की उपेक्षा हुई और आतंकवाद उत्पीड़न फैला था। The dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, the tribal area now prospering. The all-round development is taking place, whether you see in Karbi Anglong, Dima Hasao or BTR or other tribal autonomous councils. First time the tribal people has tasted the development of their own government. But Congress has ruled more than 65 years here in Assam. At that time, Congress party did not think about tribal people. What ironically is, I want to say that Congress rule or Congress regime, that terrorism and atrocities against tribals was there both in BTR, Dima Hasao and Karbi Anglong. Now BJP government could able to bring the peace and development together. At this time people are happy and people are very much attached with the government and they are very much involved in the development work of the government. So now the university, medical college, central college and various development schemes like a stadium, road communication, health sector, medical college, etc., etc. So many development in this tribal dominated areas we can witness. But at this time he is accusing BJP that BJP is against the tribal and diluting the tribal's autonomy. It is baseless, and I want to request the Congress chief, he should see the retrospectively what they did in these tribal areas and what we are doing at present. If he compares, then I don't think that he will dare to speak again such kind of things and accuse this government. So the people of BTR, Karbi Anglong and Dima are very much happy under the dynamic and develop-oriented Prime Minister Narendra Modi ji and our Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. At the time the peace prevailed in these areas and the development is going on in a very rapid way. At that time he is accusing the government. It is very unfortunate. So people that themselves will judge whatever government is doing and whatever Congress did in the past time. So common people are the best judge for this purpose. I think they will give a befitting reply in coming 2026 assembly election. Do you think that the Congress was used the tribal people as their only for their food banks? Not only tribal, Congress for years they used as a vote bank for people of tribal dominated, Muslims minority communities, Christian minority communities, Adivasi tea tribes. They are all their vote banks. So they are using them in the election with the long list of promises, but could not fulfill for 5 years. Then again at the time of election, little bit of money and alcohol that distributed during the election. Then
purchased, literally they purchased the common people's vote and formed the government years after years. Now people really understand the Congress policy and they defeated Congress twice in Assam, and for a third consecutive time people are going to defeat Congress in 2026 election. So they are very happy, the current government, the way they are doing for the people. And eviction was done to evict the illegal Bangladeshi Muslims who are occupying our land, religious land and agricultural land, forest land. So it is for the first time the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, is doing a good work for the people of Assam, the work which is very much needed in the demand of this hour. So he is doing the right thing and the people are really loving him. And now Congress is nervous. They don't have any issue for the 2026 assembly election. That's why they're accusing here and there, but people are well versed of the Congress regime and they are having the taste of development and the peace for the first time under the BJP-led government in Assam. So 2026 they will give their verdict and Congress will get their answer at the time. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तिरुचेंदुरम में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कुंभ अभिषेक, बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया अभिषेक समारोह में भाग। तमिलनाडु के तिरुचेंदुर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भव्य कुंभाभिषेकम समारोह का आयोजन हुआ। यह अभिषेक समारोह मंदिर के नवीनीकरण और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मंदिर की पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाता है। बड़ी संख्या में भक्तों ने इस शुभ अवसर पर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और धार्मिक विविधताओं का हिस्सा बने। स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने भी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। சுவாமி மலை என்கின்ற திருத்தலத்திலே 4ஆம் படை வீட்டிலே எழுந்தருளி அருள் புரிகின்றார். அந்த 4ஆம் படை வீட்டினுடைய திருப்புகழ் முருகப்பெருமானுக்கு பெண் ஓதுவார்களால் இப்போது விண்ணப்பம் செய்யப்படுகிறது. பாதிமதி நதி போதும் மணி சடை நாதரருளிய குமரேசா. பாதிமதி நதி போதும் மணி சடை நாதரருளிய குமரேசா. ஆகு கனிமொழி மாது குரமகள் பாதம் வருடைய மணவாளா. காதும் ஒரு விழி காகமுற அருள் மாயன் ஹரி திரு மருகோனே. காலன் என்னை அணுகாமல் உனதிரு காலில் வழிபட அருள்வாயே. ஆதியனோடு தேவர் சுரருலகாளும் வகையறு சிறை மீளா. ஆடும் மகிழினில் ஏறி அமரர்கள் சூழவலம் வரும் இளையோனே. சூதமிக வள சோலை மருவ சுவாமி மலைதனில் உறைவோனே. சூடன் உடல் அறவாரி சுவரிட வேலை இடவல பெருமாளே. காலம் என்னை அணுகாமல் உனதிரு காலில் வழிபட அருள்வாயே. சூரன் உடல் அற வாரி சுவரிட வேலை விடவல பெருமாளே. செந்தில் ஆண்டவர் முத்தமிழால் தன்னை வைகாரையும் வாழ வைக்கின்ற கடவுள் முருகப்பெருமான் என்று அருணகிரி பெருமான் தன்னுடைய திருப்புகழிலே பதிவு செய்கின்றார். திட்டினாலும் நல்ல தமிழில் திட்டினால் முருகன் மிக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக அதை கேட்பாராம். தமிழ் கேட்பது என்பது முருகப்பெருமானுக்கு மிக பிரியமானது. ஏனெனில் தமிழின் வடிவமும் முருகனின் வடிவமும் ஒன்று என்கின்றபடியினாலே முருகப்பெருமானை நாம் தமிழ் கடவுள் என்று போற்றி மகிழ்கின்றோம். தமிழினுடைய வடிவம் முருகு என்கின்ற நாமத்திலேயே இணைந்திருக்கின்றது. முருகப்பெருமானுடைய நாமங்களிலே மிக தொன்மையான நாமத்திற்கு முருகு என்று பெயர்.
முருகுகள் இளமை நாச்சம் முருகவேள் விழாவணப்பாம் என்று பேசப்பட்ட அந்த நாமத்தில் மருவி வந்த நாமாதான் முருகன் என்கின்ற நாமா. அந்த முருகு என்பது வல்லினம் மெல்லினம் இடை. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा ने 125वीं जयंती पर की घोषणा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने आईसीए विभाग में कार्यक्रम में भाग लेते हुए ऐलान किया कि अगरतला टाउन हॉल का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। इसी के साथ उनकी याद में टाउन हॉल परिसर में संगमरमर की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी विचार और आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখন যে কথাটা বলছেন সেটা কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগেই বলেছিলেন। কি বলেছিলেন? যে আমাদের সোশ্যাল রিফর্মস করতে হবে। সোসাইটির মধ্যে যেভাবে আগে চলছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেইভাবে কিন্তু দেশ চলতে পারে না। আমাদের যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতির যে বুনিয়াদ, আমাদের যে সামাজিক অবস্থান, তার একটা রূপরেখা কিন্তু কিচ্ছু ছিল না। মিশ্র একটা ধারণা নিয়ে আমাদের দেশ চলছিল। আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, উনি বুঝতে পারছিলেন না যে কিভাবে দেশকে চালাতে হবে। একটা মিশ্র একটা আইডিয়া নিয়ে কিছুটা বাইরের কিছুটা আমাদের দেশীয় এরকম মিশ্র একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে, তো সেটা চলতে পারে না। এইভাবে একটা দেশের উন্নতির পথে সেভাবে চলতে পারে না। সেই বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজি ওনার একাত্ম মানববাদে পরিষ্কার বলেছে যে আমাদের ভারতীয় তথ্য যেটা ভারতীয়র আগে কিন্তু ভারতীয়ের মধ্যে কিভাবে আমাদের দেশ চলতে হবে, আমাদের যে ইতিহাস সেইগুলোর দিয়েই আমাদের আগে চলতে হবে। এবং প্রকৃতির মধ্যে সব রহস্য আমাদের রয়েছে। এবং উনি এটাও বলেছেন যে একজন আরেকজনকে ছাড়া আমাদের কোনোদিন চলা যাবে না। এটা উদাহরণস্বরূপ উনি বলেছিলেন পণ্ডিত দীনদয়ালজি যে গাছ যেমন জন্তু বা পশুদের বা মানুষদের ছাড়া চলতে পারবে না, আবার পাশাপাশি প্রাণী জগতেও কিন্তু যারা জীব আছেন, প্রাণী উদ্ভিদ আছেন, তাদের বিনা আমরা চলতে পারবো না। কারণ ওনারা অক্সিজেন দেয় আর আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড দিই। এটা উদাহরণ, প্রকৃতির মধ্যেই রহস্য রয়েছে। এর জন্যই আজকের তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর প্রয়াস। আর আগে আমরা যেসব সোশিয়ালিজমের কথাই বলি, ক্যাপিটালিজমের কথা বলি বা অ্যানার্কিজমের কথা, যদি সব ইজম, এইভাবে কোনো অবস্থায় সামনে এগোনো যায় না। কারণ এতে করে একটা ডিভাইড এন্ড রুলের একটা ব্যবস্থা আসে। শ্রমিকদের আলাদা, মালিকরা আলাদা, আবার সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট এই কথা যদি আসে, ডারউইনের যে মতবাদ, সেখানে দেখা যায় কোনো গণতন্ত্র থাকে না। তো সেখানেও ক্যাপিটালিস্ট একদিক দিয়ে, আবার একদিকে গরিব। তো এইভাবে কোনো অবস্থায় কোনো দেশ চলতে পারে না। তখনই ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজমের কথা আসে যে আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, কেউ আলাদা না। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की नींव रखी। गुजरात के आनंद में एक ऐतिहासिक दिन था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ये विश्वविद्यालय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थानों के परिसर में 125 एकड़ में फैलेगा और इसके निर्माण पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास केशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जो भारत के सहकारी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। सहकारिता क्षेत्र के इतिहास में और सहकारिता क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अद्वितीय कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान शंकर भाई चौधरी, अध्यक्ष गुजरात विधानसभा और गुजरात के प्रमुख सहकारी नेता श्री कृष्णपाल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर महल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्रीमान ऋषिकेश पटेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग गुजरात के मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, सहकारिता मंत्री गुजरात राज्य, यहाँ के लोकप्रिय सांसद बकाभाई पटेल, श्री आशीष भाई भूतानी, सचिव सहकारिता श्री जे.एम. व्यास, कुलपति त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मीनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी और भूतपूर्व अध्यक्ष इरमा, और आज गुजरात और देश भर से सहकारिता के अलग अलग क्षेत्र पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय और गुजरात में जिला स्तरीय काम करने वाले सभी सहकारिता क्षेत्र के नेताओं को, सहकारी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। मंत्रालय की स्थापना के बाद चुने हुए देश भर के 16 सहकारी नेताओं के साथ मैं बैठा था। कई बार मीटिंग हुई, उन्होंने अकेले में भी कई बार मीटिंग करी और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, इसके संवर्धन के लिए और उसके सम विकास के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य के हर जिले की हर तहसील तक सहकारिता आंदोलन कैसे पहुंचे और उसके लिए क्या क्या कमियां रह गई और क्या क्या करना चाहिए, वो कारणों की एक सूची बनी, एक्शनेबल पॉइंट की एक सूची बनी और वो सूची के आधार पर कल 4 साल पूरे हो जाएंगे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो 60 नए इनिशिएटिव भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने लिए हैं और वो 60 के 60 इनिशिएटिव सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन के समान रूप से विकसित करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को पारदर्शी बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, सहकारिता के माध्यम से किसान की खेती के अलावे जो इनकम होती है उसको बढ़ाने के लिए और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। मगर आज हम जो करने जा रहे हैं, वास्तव में तो आज मुझे नाम याद नहीं है, शायद सहकारिता मंत्रालय के ही कर्मचारी थे, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में बैठकर उन्होंने भूमि पूजन किया तो सहकारिता की यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम वहीं हो गया है। परंतु आज जो हम कर सहकारिता आंदोलन देश भर में
बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 80 लाख बोर्ड्स के मेंबर पैक्स से लेकर एपेक्स तक, प्राथमिक डेयरी से लेकर नेशनल फेडरेशन तक, और कई सारी मछुआरा समिति, हाउसिंग सोसाइटी में 80 लाख बोर्ड के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, देश का हर चौथा व्यक्ति सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। परंतु इस क्षेत्र के विकास के लिए इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो सहकारिता के कर्मचारी और सहकारी कमेटी के सदस्य, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। एक और कमी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले हम कोऑपरेटिव में किसी को भर्ती करते थे, उसको नौकरी देते थे, फिर उसको ट्रेनिंग करते थे। मगर अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी को ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रावधान हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको शायद पसंद नहीं आएगा। इसके कारण सहकारिता में जो भाई भतीजेवाद का आरोप था वो भी चला जाएगा। जो सहकारिता यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेगा उसी को नौकरी मिलेगी। इससे पारदर्शिता भी आएगी और अनेक प्रकार के नए कोर्स, टेक्निकल तजज्ञता तो आएगी ही, अकाउंटेंसी की तजज्ञता तो आएगी ही, वैज्ञानिक अप्रोच तो आएगा ही, मार्केटिंग के सारी गुण वो सीखकर भी आएगा, परंतु साथ में सहकारिता के संस्कार भी सीखकर आएगा कि ये जो आंदोलन है देश की गरीब महिला के लिए है, देश के दलित के लिए है, देश के आदिवासी के लिए। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखने में। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है 2 लाख नए पैक्स बनाए जाए। बाकी सारा विस्तार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 लाख नए पैक्स का ही निर्णय करते हैं जो बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तक हम 60,000 बना लेंगे तो 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी चाहिए। और कई सारी जिला डेयरियां बन रही है, कई सारी डेयरीज बन रही हैं। इस सब के लिए ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय पूरा करेगा। आज यहां पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। और मित्रों, सीबीएसई ने शुरुआत की है। भूपेंद्र भाई विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री तीनों यहां बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि सीबीएसई ने पुस्तकों में, अभ्यासक्रम में 9 से 12 तक की कक्षा में सहकारिता विषय को जोड़ा है,
गुजरात सरकार भी अपने अभ्यासक्रमों में सहकारिता विषय को जोड़े, जिससे आम लोग सहकारिता के महत्व को जाने। मित्रों, जब मैं त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का विधेयक लेकर खड़ा हुआ, उसके पहले अध्यक्ष जी ने मुझे चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेस के नेता मिले थे, वो कह रहे थे कि इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है। मैंने बोला ठीक है अध्यक्ष जी, अब उनका विरोध है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का निर्णय है। मैं आज कांग्रेस के उस नेताओं को जवाब देने के लिए इस मंच पर बैठा हूं कि यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्यों रखा। शायद उन लोगों को मालूम नहीं था त्रिभुवन ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है, ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है, वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। यही त्रिभुवन दास जी है जिन्होंने पॉल्सन दिल्ली की दादागिरी के सामने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में यही भूमि पर, यही वीर भूमि पर एक नया विचार का बीज बोने का काम किया। एक छोटी सी मंडली दूध इकट्ठा करने की रखी गई और उसके माध्यम से किसानों की सशक्तता के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला। 1946 में खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, इसकी स्थापना हुई और आज वो त्रिभुवन दास ने बोया हुआ बीज वटवृक्ष बनकर पनपा है। 36 लाख बहनें 80,000 करोड़ का कारोबार करती है और किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं रोकी। पॉल्सन की शोषणकारी नीति के सामने सहकार की, संगठन की शक्ति खड़ी करने का काम ये त्रिभुवन दास जी ने किया। और आज अमूल ब्रांड से विश्व का खाने पीने की चीजों के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बनकर उभरा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मित्रों, धीरे धीरे दीपक की तरह जलकर उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सींचने का काम किया और जब उन्होंने अपने आप अमूल के अध्यक्ष के पद से रिटायरमेंट लिया, तब 6 लाख बहनें एक कारोबार के साथ जुड़ी थी। सबने 1-1 रुपया देकर 6 लाख रुपया त्रिभुवन भाई को थैली भेंट की। त्रिभुवन भाई ने वो 6 लाख रुपया भी त्रिभुवन फाउंडेशन ट्रस्ट को देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने का किया। ये उन्हीं का विजन था कि दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी
सीना तान कर खड़ी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों के सामने कोऑपरेटिव का मॉडल सफल बनकर उपसा है और उन्हीं का विजन था। उसको लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी में परिवर्तित किया और एक तहसील से शुरू हुआ आंदोलन आज देश भर में कोऑपरेटिव आंदोलन में बदल कर रह गए। और वो कहते थे कुरियन साहब का बड़ा योगदान है। कुरियन साहब का योगदान तो है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। गुजरात में ये संस्कार नहीं है कि किसी के भी योगदान को नकारा जाए। जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने कुरियन साहब की शताब्दी के लिए कुछ नहीं किया, ये अमूल ही है जो कुरियन का शताब्दी वर्ष मनाने का काम कर रहा है। और कुरियन साहब को नीदरलैंड पढ़ने लिखने के लिए भेजने का काम भी हमारे त्रिभुवन दास पटेल साहब ने किया था और उन्होंने उनको फ्री हैंड देकर ये पूरी चीज का निर्माण कर। एक सहकारी नेता हर सदस्य की भलाई के लिए सोचकर अगर काम करता है तो राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के समृद्धि बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान कर सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास काशीदास पटेल ने यहां पर प्रस्तुत किया था। यही भूमि पर किया था, यही भूमि पर यूनिवर्सिटी बन रही है। और आज मैं फिर से डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी रखने का हमारा फैसला है, वो उचित ही फैसला है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे देश के मूल विचार हैं, हमारी संस्कृति की नींव है और उसी से इस सहकारिता की भावना की संस्कृति पैदा हुई है। ये संस्कृति आर्थिक कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण, पशु कल्याण और पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ साथ अब गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। 30 करोड़ सदस्य जिसके है ऐसा एक आंदोलन, जिसकी एक प्रकार से शिक्षा के बारे में एक बड़ा वैक्यूम का अनुभव होता जाता था। शिक्षा में वैक्यूम था तो नवाचार और प्रशिक्षण में भी वैक्यूम आया, संस्थाओं के बीच में समन्वय में भी वैक्यूम आया और सहकारिता यूनिवर्सिटी बनने के साथ ही ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी ये सारे वैक्यूम को समाप्त कर देगी। नीतियों का भी निर्माण करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान का नींव डालेगी, प्रशिक्षण तो करेगी ही करेगी और देश भर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एक ही समान प्रकार से कोर्स बनाकर देश भर की सहकारिता को एक ही प्रकार से आगे बढ़ाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पहले प्रतिभाएं थी मगर प्लेटफॉर्म नहीं था। अब उन प्रतिभाओं को ये यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म देने का काम करे। दिशा तो दिखाई थी त्रिभुवन काका जैसे लोगों ने, परंतु मार्गदर्शन नहीं था। यहां से नीति बनकर वो दिशा पर किस रास्ते पर चलना उसका मार्गदर्शन भी मिलेगा। आत्मनिर्भरता थी परंतु पूंजी नहीं थी। पूंजी कैसे प्राप्त की जाए और प्राप्त की हुई पूंजी कैसे मुनाफे के साथ लौटाई जाए, इसकी तज्ञता भी यहीं से आएगी। और योजनाएं तो बनती थी मगर जमीन पर नहीं उतरती थी। 2 लाख पैक्स और पुराने 85,000 पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी देखेगी। एक प्रकार से देखा जाए तो इस मेगा वैक्यूम को
भरने का काम त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी करेगी। वो वैक्यूम ने हमारे सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से सिकुड़ कर रख दिया था। अब वो फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में सहकारिता का सबसे बड़ा गढ़ अगर कहीं बनेगा तो हमारे भारत में बनेगा। एक युगांतकारी कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है और यही यूनिवर्सिटी और यहां बनाई हुई नीतियां और अभ्यासक्रम सहकारिता के आर्थिक मॉडल से जन आंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और टाउन की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय मुख्य विकास धारा बन जाएगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एनसीईएल, एनओसीएल और बीबीएसएल जो बीज, एक्सपोर्ट और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बेचने का काम कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हमने आगे बढ़ाई है और इसके साथ साथ कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। परंतु ये सब के लिए योग्य कर्मचारी मिलना, इस सब के लिए योग्य सहकारिता आंदोलन के सिपाही मिलना, ये काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और खादी ग्राम उद्योग, कई सारे क्षेत्रों में अब एक्सपर्टी की जरूरत है। हम कोऑपरेटिव टैक्सी भी लाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनाना चाहते हैं। अगर ये सब करना है तो हमें हर क्षेत्र के विशेष ज्ञान वाले अधिकारी भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए और सहकारी नेता भी चाहिए। अब पैक्स नई पीढ़ी की सहकारिता को स्टार्टअप के साथ जोड़ेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा ड्रिवन निर्णय और डेटा के आधार पर एनालिसिस कर नीतियों का निर्माण करना है, वो हमारी यूनिवर्सिटी करेगी। इसमें डिजाइन और विषय वस्तु का मानकीकरण, सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों का स्थापन, अनुसंधान केंद्र और हर राज्य में संबद्ध कोऑपरेटिव प्रशिक्षण के संस्थान बनाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया वर्चुअल शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के पंडरिया में एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां 61 विकास परियोजना का विजुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल लागत 72.70 करोड़ रुपए है, जो राज्य के विकास के महत्वपूर्ण में योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अब तक 1.5 साल पूरे कर लिए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई गारंटियों को पूरा किया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, भगवान भोरम देव की, भगवान भोरम देव की। आज पंडरिया के पावन भूमि में आयोजित कबीरधाम जिला के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 72 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में रायपुर से वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिमन 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चहुमुखी विकास करीन और छत्तीसगढ़ से भूख लाभी भगाइन और सड़क, बिजली, पानी हर तरह के विकास के काम करीन। ऐसे चाउर वाले बाबा आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे राजनांदगांव के
सांसद श्री संतोष पांडे जी, पंडरिया के लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे कबीरधाम जिला के अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक श्री अशोक साहू जी, श्री राम कुमार भट्ट जी, गोपाल साहू जी, मंच में विराजमान सबो हमार भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और पूरे पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से आए हजारों के संख्या में सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार भाई बहनी मन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले आप मन से क्षमा चाहत हूं। हमन तीनों यहाँ रायपुर में 10 बजे से पंडरिया जाए बर तैयार हन। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय विजय शर्मा जी, तीनों 10 बजे से ही पंडरिया जाए के लिए तैयार हमन बैठे हन, लेकिन आज हमार दुर्भाग्य की मौसम साथ नहीं दईस, हेलीकॉप्टर वाला मना कर दीस और इसलिए आज वर्चुअली हमला रायपुर से ही आप मन के दर्शन करना पड़त है, आप मन से जुड़ना पड़त है। एक लिए आप मन से क्षमा प्रार्थी और आप मन के मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करत हूं। हमार बहनी भावना बोहरा बहुत मेहनत करे रही आज के कार्यक्रम में, बारिश के बाद भी हजारों के संख्या में आज के कार्यक्रम में आईन है। मैं सब से भी मैं आज क्षमा चाहत हूं और डॉक्टर साहब जैसे बताई नहीं कि आज के कार्यक्रम हर उधारी रही से बाद में फिर हमन आबो, आज तो वर्चुअली जुड़े हन रायपुर से, लेकिन फिर एक बार पंडरिया हमन प्रत्यक्ष आप मन के दर्शन लाभ करे बर हमन जरूर आबो। हमर ये तीनों जन के वादा है और हमार भावना बोहरा जो आप मन के पंडरिया के एक जागरूक विधायक है और जेकर परफॉर्मेंस विधानसभा में बहुत अच्छा रहे, अपन क्षेत्र के प्रदेश के समस्या ला बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में उठा थे। क्षेत्र के जो आवश्यकता है ओला मांग के रूप में रखे भी और बहुत समाज सेवी है। अभी डॉक्टर साहब गिनात रही की कैसे कैसे समाज सेवा के काम उमन करत हैं और आज 5 बस भी अपन तरफ से जो क्षेत्र के हमार महाविद्यालय के हमार बेटी हैं उमन के आवागमन में सुविधा हो, कॉलेज जाए के हमला सहूलियत हो, एक लिए 5 बस अपन तरफ से देते हैं। एक लिए मैं उमन के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। एक मिसाल है जनप्रतिनिधि मन का कर सकते हैं जनता के लिए, एक मिसाल कायम हमार बहनी भावना बोहरा हर करीन है, आगे भी ऐसने काम करते रहे। बहुत बहुत उमन के साथ में शुभकामना है और आप सब जानत हो कि अभी हमार सरकार ला आज 72 करोड़ के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुए है और ये पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ही है और इसलिए मैं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनी मन ला भी ये विकास काम के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूँ। अभी हमार सरकार के आप मन के आशीर्वाद से 1.5 साल पूरा हो थे और 1.5 साल में हमन मोदी के जो गारंटी रही, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विधानसभा चुनाव के समय 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी मन से वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के काम हो, चाहे किसान मन से किया गया वादा हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम हो, 2 साल के बकाया बोनस भी हमन 3716 करोड़ रुपया देह के काम करें। आज रामलला दर्शन योजना, आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करे रही, पिछला सरकार जो बंद कर दे रही ओला फिर शुरू करे हन। आज तेंदुपत्ता से हमार
सरगुजा बस्तर संभाग के करीब 12-13 लाख परिवार जुड़े हैं। उमन के तेंदुपत्ता की कीमत 5,500 करे हन। चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। ये सब काम आपन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। अभी हमारे पंचायत मंत्री बैठे हैं, डिप्टी सीएम। हमार वादा रही कि हमन पंचायत में बैंक के सुविधा देबो और अटल डिजिटल सेवा केंद्र आज 1460 ग्राम पंचायत में पूरे प्रदेश में शुरू करे हन। वहाँ के लोगन मन ला पैसा कौड़ी बैंक जाना नहीं पड़त है और आने वाला 6 महीना में और 5,000 ग्राम पंचायत ला जोड़ना है और अगले साल के जो 24 अप्रैल के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होते तब तक प्रदेश के सभी पंचायत में ये व्यवस्था देना है। अभी भूमि रजिस्ट्री के विषय में भी पहले काफी गलत सलत होत रही से, तो वो सब के भी हम क्रांति लाए हन। अब कोई फेक कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं हुई। रजिस्ट्री के साथ में नामांतरण भी हो जाही। कोई अपन बेटा बेटी ला अपन जमीन ला देना चाहिए तो पहले खर्चा करना पड़त रही से, रजिस्ट्री वगैरह कराना पड़त रही से, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में नामांतरण हो जाही। ये सब व्यवस्था हमन करत हन और पूरे प्रदेश में सुशासन स्थापित हो। एक लिए हमन सरकार में भी सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन और ओकर माध्यम से जितना जो भ्रष्टाचार के रास्ता है वो सब ला बंद करत हन और सुशासन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा के आकांक्षी जिलों को पीएम मोदी का विशेष ध्यान। राज्य के मंत्री सूर्यवंशी सुरेश ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकांक्षी जिलों के विशेष महत्व दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अविभाजित कोरापुट क्षेत्र का शैक्षणिक परिस्थितिक तंत्र व्यापक रूप से समीक्षा की है। मंत्री ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NIP पूरे ओडिशा राज्य में लागू की जाएगी। सर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में आज एक अहम बैठक में डिस्ट्रिक्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे ऑनरेबल पीएम सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और हमारे सीएम सर भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोरापुट से अपने पहला दौरा किए थे। तो इसी सिलसिले में हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आज 2 दिन का दौरा उनका समाप्त हो रहा है। ये दौरे में वो शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक, उच्च शिक्षा से लेके जितने भी बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हार्डकोर डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट का, ये 4 जिलाओं में, ये 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उसका रिव्यू, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो कोरापुट प्लान है उसको कैसे चेकआउट किया जा सके, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉप सेक्रेटरी से लेकर ब्लॉक का भी एम्प्लॉय, ब्लॉक का ऑफिसर आज यहाँ पे उपस्थित रह के ये पूरा विषय पर एंड टू एंड चर्चा हो रहा है। MSME क्लस्टर का एस्टेब्लिशमेंट से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 610 करोड़ का भित्ति भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करना या फिर शिलान्यास करना और केंद्रीय विद्यालय जो 40 करोड़ से ज़्यादा भित्ति भूमि जनित जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको भी आज फाउंडेशन स्टोन उसका शुरुआत किए हैं। इससे अलावा कोरापुट का जो पहचान है, कोरापुट कॉफी है और कोरापुट का जो कोटपाट वस्त्र है, उसको देश भर में कैसे पॉपुलराइज किया सके और देश भर में उसको पॉपुलराइज करके उसका पैसा कैसे लोकल लोगों तक पहुंचाया जा सके। हम अभी 600 टन कॉफी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो 30 से 40 करोड़ का उसका बिजनेस है, उसको कैसे 10 फोल्ड हम इंक्रीज कर सकेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। और बहुत खुशी की बात है कि आने वाले समय में, आने वाले शिक्षा वर्ष में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट खोलने वाला है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकता है, ये डेयरी साइंस हो सकता है, ये हो सकता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटाबेस के ऊपर कोई भी नया ट्रेंडिंग वाला सब्जेक्ट आ सकता है। ये जनजाति समुदाय क्षेत्र में हम वैषयिक शिक्षा को जनजाति समूह के पास पहुंचा रहे हैं, अप्रोचेबल कर रहे हैं। ये ड्रॉप आउट रेट को कमाएगा और GER को बढ़ाने में बहुत मदद होगा, ये मेरा मानना है।
पे रेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पे प्रमुख बिंदु है। देखिए, ये जो 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। पिछले दिनों में इसका शैक्षिक व्यवस्था बहुत अच्छा था, लेकिन सालों भर में इसका खराब हुआ है। अभी हम NEP का 100% इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम KG टू PG NEP इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और ऐसा मेरा मानना है कि जैसे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने 2 दिन यहाँ पे स्पेंड किए हैं, विभिन्न वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों से, विभिन्न समुदायों से मिले हैं, और उसका जो आउटकम आएगा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को आने वाले दिन में बहुत डेवलपमेंट करेगा। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीयूष गोयल बोले, भारत के हितों की रक्षा हर व्यापार समझौते में प्राथमिकता। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के हितों की रक्षा मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी देश के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ही किए जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि आज दुनिया भारत का एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यापारिक समझदार के रूप में देखती है। बी वोकल फॉर लोकल। जो भारत में बनी हुई लोकल गुड्स है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और अब तो हमारे लोकल गुड्स पूरे विश्व में जा रहे हैं। आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? जिससे आपको और मार्केट्स खुले, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले आपके बनाए हुए सामान को दूसरे देशों में, आपके GI टैग प्रोडक्ट्स को सम्मान मिले दूसरे देशों में। कोई अगर और कोई बाधाएं हैं जिससे आप विदेश की मार्केट्स को नहीं कैप्चर कर पा रहे, लाभ नहीं ले पा रहे, वो आपके लिए खुले, उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता। पर स्वाभाविक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 2 तरफा ट्रेड होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आप तो अपनी मार्केट खोल दो पर आपका कुछ भी सामान भारत में नहीं लेंगे। इतना तो आप लोग मानेंगे ना? ताली तो 2 हाथ से बजती है। 2 तरफा ट्रेड होता है, पर उसमें भारत के हितों को संरक्षित रखना ये हमारी प्राथमिकता रहती है। अभी शर्मा जी ने उसका जिक्र भी किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, नेशनल इंटरेस्ट, भारत के हितों को संरक्षण करना ये मोदी सरकार का पहला ध्येय रहता है। ये हमारी प्राथमिकता रहती है और आप सबको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ होगा उसमें कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की और पूरे भारत के हर एक प्रांत की, हर एक हिस्से की पूरा संरक्षण करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाएंगे। हम वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल गोज ग्लोबल इस पे भी बल देंगे। हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रमोट करना चाहते हैं। हम डिजाइन इन इंडिया के साथ साथ डिजाइन फॉर द वर्ल्ड को यहां से प्रमोट करना चाहते हैं। हम इनोवेट इन इंडिया के साथ साथ इनोवेट फॉर द वर्ल्ड उसको भी प्रोत्साहन करना चाहते हैं। हम रिसर्च इन इंडिया के साथ साथ रिसर्च फॉर द वर्ल्ड भारत से हो उसको भी बल देना चाहते हैं। एक प्रकार से अब भारत पूरी दुनिया को व्यापार और उद्योग के जगत में एक ट्रस्टेड पार्टनर, विश्वसनीय साझेदार के रूप में आज लोग भारत की तरफ देखते हैं। लोगों को विश्वास है कि भारत और भारतवासी ईमानदार व्यापार करते हैं, ईमानदार व्यवस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, गलत काम नहीं करते। इसलिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहती है। दुनिया के सब विकसित देश आज भारत के साथ करार करके अपना 2 तरफा व्यापार बढ़ाने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। और ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। ये हम सबके लिए मौका है। नई बाजार में नए उत्पादन, नए वस्तु लेके जाने के लिए हमारे में से नए निर्यातक उभरेंगे। न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट,
न्यू एक्सपोर्टर, ये हमारी एक विशेष ध्यान रखने वाला हमारे मंत्रालय का और मोदी जी की सरकार का हमारा काम का परिचय रहेगा। नए मार्केट्स को कैसे कैप्चर करें, नए एक्सपोर्टर्स को कैसे प्रोत्साहन दें, नए प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा सीएम सैनी बोले 2029 भाजपा का होगा। दिल्ली में एक राजनीतिक संदेश के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में भाजपा केंद्र और हरियाणा की तीसरी बार सत्ता में है। मुख्यमंत्री ने जोश भरते हुए कहा कि हमें नहीं रुकना है, न थकना है और अब लक्ष्य है विकसित भारत में विकसित हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान सुनिश्चित करना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2029 भारतीय जनता पार्टी का वर्ष होगा। आज यह पार्टी 14 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की नंबर 1 की पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये बन चुकी है। हरियाणा में भी भाजपा के अगर हम देखते हैं कि 46 लाख, हमारे 46 लाख से भी ज्यादा लाइव सदस्य हैं। इसके लिए मैं सभी को इन कार्यालयों के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे स्थान पर रखा जाता है, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने पिछले 11 वर्षों में एक ऐतिहासिक इस भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने का जो काम किया है, इन 11 वर्षों के अंदर जो गरीब व्यक्ति की चिंता की है, उसके घर तक एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजना का लाभ पहुंचा है। तो मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के जो मार्गदर्शन के अंदर और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार देश के लोगों ने ये दी है। मुझे खुशी है कि आने वाला समय ये हमारा है, जो 2029 का समय भी है, ये भारतीय जनता पार्टी का समय है। हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें मिलकर हरियाणा के, देश के हर घर के अंदर तक पहुंचना है, हर दिल को जीतना है। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प में विकसित हरियाणा का भी सबसे अधिक योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार में घोर गरीबी 16% से घटकर 2% लंका दिनाकर बोले। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामाजिक आर्थिक उपलब्धि की ओर इशारा करते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के चेयरमैन और भाजपा नेता लंका दिनाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है। लंका दिनाकर के अनुसार 2011 से 2012 में देश में अत्यधिक गरीबी दर 16.20% थी, जो 2022 से 2023 तक घटकर केवल 2.03% रह गई है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 20 करोड़ भारतीय घोर गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। Extreme poverty rate was 16.20% in 2011-12. It has been significantly reduced to 2.30% by 2022-23. Due to the spirit of the central government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji governance since 2014, effective implementation of various schemes and programs, projects and policies of the union government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji has shown this performance
Currently, nearly 20 crore people has come out from the acute poverty in our country as per the experts' opinion. Today, average income gap between the people has registered 25.5%. It is the world fourth lowest rank as far as our country is concerned. Even United States has registered it as a 35.70%, 41.80%. China registered it as a 35.70%, and Australia registered as 32.40%. These are all happens because the schemes have been implemented through direct cash benefit scheme. 55 crores Jan Dhan accounts, through which 45 lakh crores has been distributed for the eligible beneficiaries by the union government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. We are also taking part our decision pertaining to the aspiration districts and blocks review, because aspiration districts and blocks, backward districts have been recognized. 107 districts have been recognized as aspirational districts to improve the infrastructure and livelihood and other development parameters for drinking water, housing, education, nutrition, food, so on. These are all the schemes implementing for the development and improvement of the aspirational districts to compete with on par with the developed districts. In Andhra Pradesh, 3 districts were recognized as aspirational districts. One is Alluri Sitaramraju district, second one is Parvatipuram Manyam district, and third one is YSR Kadapa district. Apart from these 15 blocks also recognized as aspirational blocks. This concept will reduce significantly the acute poverty in the backward area of our country. Various districts which were backward, nearly 117 districts have been identified by the union government. In coming years, significant amount of acute poverty people are coming out from their miserable conditions due to the union government decision, like aspirational districts problems, PM Janman scheme, like these kind of schemes, whether it provides basic infrastructure for living infrastructure in backward area and connectivity from one developed area to these undeveloped districts. So, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, aligning programs have been aligning by the Chandrababu Naidu Garu in the state of Andhra Pradesh as a Chief Minister to make Swarnandhra by 2047 to contribute आंध्र प्रदेश शेयर इन विकसित भारत 2047 as आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान कोचिंग स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज यानी NUALS में छात्रों और फैकल्टी के साथ संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने के प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर का जिक्र करते हुए उन्होंने मौज की ईद यानी आइडियाज ऑफ मैच की ऐतिहासिक चेतावनी को याद दिलाया, जब भविष्यता से सीजर को चेताया जाता था कि वे 15 मार्च को सावधान रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा, मार्च की ईद दुर्भाग्य और विनाश से जुड़ी होती है और इसी मार्च की 14 और 15 तारीख को रात को हमारी न्यायपालिका ने अपनी ईद मनाई। एक भयानक समय था वे। My young friends, if you have heard of Ides of March, those of you who have read Julius Caesar, where the soothsayer cautions Caesar, beware of Ides of March. And when the Caesar was going from the palace to the courtroom, he spotted the soothsayer and he said, Ides of March has come. And Caesar said, the soothsayer said, yes, but not gone. And before the day was over, Caesar was assassinated. Ideas of March is associated
with misfortune and doom. Our judiciary had ideas of march on the night intervening 14th and 15th March, a terrible time. There was cash hole at the residence of a judge in large quantum. I say so because it is now in public domain, officially put up by the Supreme Court, that are the residence, official residence of a judge of the Supreme Court, so judge of the High Court, cash in large amount was found. Now the point is, if that cash was found, system should have moved immediately. And the first process would have been to deal with it as a criminal act. Find out those who are culpable. Bring them to justice. But so far there has been no FIR. The government at the central level is handicapped because an FIR cannot be registered in view of a judgment of the Supreme Court rendered in early 90s. You must read that judgment. I am all for independence of judiciary. I am a strong votary of protecting judges. Judges deal with very difficult situations. They decide cases against the executive. They deal in certain areas with legislature matters. We must protect our judges from frivolous litigation. So I am not against the mechanism evolved. But when something like this happens, some things are worrisome. The incident took place, boys and girls, on night intervening 14th and 15th March. We did not come to know about it. It was only on 21st March this year, after about 7 days, we came to know about this ghastly crime. Now question arises, did anyone know about it earlier? Yes, it was a fire incident. The fighting mechanism was there. Those involved with the system knew about it. Why it was not shared? I am a concerned man. Whether this is an incident in isolation or there are other similar incidents, that is something which we have to deal with. I therefore strongly feel, and I have said it on multiple occasions, proceeding with the constitutional mechanism of dealing with the church in terms of constitutional provision is one way out. But that is not a solution, because we claim to be a democracy, which we are. The world looks us as a mature democracy, where there has to be rule of law, equality before law, which means every crime must be investigated. If the money is so huge in volume, we have to find out, is it tainted money? What is the source of this money? How was it stacked in the residence, official residence of a judge? It belonged to whom? Several penal provisions are violated in the process. I do hope an FIR will be registered. We must go to the root of the matter, because for the democracy it matters that our judiciary
In अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।